Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 24th of July. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. In this video students, we are talking about 6 crore people that has been screened under the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission. Then we will be talking about Nagaland University that will be hosting one of 4 incubation centers in the northeastern region. Then we will be talking about a World Bank report that has been released. All these things and many more will be discussed in this video, so stay tuned with us till the end. Also students, if you are new here, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs. Share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Also students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis, which is quite beneficial for all the students who are preparing for competitive exams, and you will be getting healthy insights from these daily current affairs video on daily basis that will enhance your learning journey. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs students. Our country, India, has completed the screening of 6 crore people under National Sickle Cell Anemia Elimination Mission. Right? The target here is 7 crore rupees and we have achieved 6 crore under this. Out of these 6 crore individuals, 2.15 lakh individuals are diagnosed with SCD, that is your sickle cell anemia, and 16.7 lakh individuals have been identified as the carriers of the same. This sickle cell disease, it is a genetic blood disorder that is characterized by abnormal shaped red blood cells. Right? We know that in bloods, white blood cells are there and red blood cells are there. Right? And our blood contains iron. Right? Take a note of this also. Next thing, remember here Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Telangana, Karnataka and Uttarakhand, they have exceeded the screening targets and 2.6 crore health cards have been distributed to the screened individuals across the state. Then Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat have reported the higher number of the diagnosed cases for this sickle cell disease. And National Sickle Cell Anemia Elimination Mission was also launched on 1st of July in 2023 with the aim of eliminating this sickle cell disease by 2047. So the target is to eliminate it by 2047, and this is specifically in the tribal and vulnerable population. Next, Nagaland University to host one of 4 incubation centers in the northeastern region, right? And this will be under, that is, establish, develop and manage entrepreneurship development center and incubation center in the educational institutes of the northeastern region. Right now, what this will do is this will foster the growth of startups. Right? It will encourage entrepreneurship in the northeastern region in areas such as Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Tripura, Nagaland, Sikkim, many more. Right? So take a note of this. Also, it is Nagaland University, right, that will be where one of the 4 incubation centers will be established. This particular Nagaland University incubation center, it will offer mentorship, workshop, ideathons, boot camps, various hackathons and awareness campaigns will be launched. And from here, these startups, right, 50 startups will be selected, right, and a funding of 5 lakh rupees or a grant of 5 lakh rupees will be provided to them. Moving on students to international affairs, World Bank. Who is the president of World Bank? Ajay Banga. Headquarter of World Bank, Washington, DC. So World Bank has recently released a report and it stated that by 2030, Indian cities to create 70% of the jobs but may lose around $5 billion to floods. So we can say because of natural disaster and in that too, because of floods, India will be losing almost $5 billion. That is a
huge amount of money, right? So this report was released by World Bank, and it is toward resilient and prosperous cities in India. They have prepared in partnership with the Ministry of Housing and Urban Affairs, and this report projected that Indian cities hold huge potentials as a center of economic growth, with 70% of the new jobs coming from cities by 2030. And that is the reason, students, we are seeing that huge number of skilling initiatives are being launched in India. We are seeing multiple incubation centers are being set up, where Atal Innovation Mission was launched to foster skilling and foster startup culture, foster entrepreneurship. Then we are seeing the government of India is also boosting MSMEs, and these MSMEs are a huge source where the job employment will be created, where job opportunities will be created, right? And similarly, this report also said that because of flood, India will be losing $4 to $5 billion by 2030, and this number will increase to 14 to 30 billion dollar by 2070 if cities do not have the proper infrastructure. Also, the report stated that the India's urban population, it is expected to almost double by 2050 to 951 million. Over 154 million new homes will be required by 2070, right? We know that India is the largest populated country in the world, right? And that is one of the big reason we are seeing that the housing demand in India is increasing, the real estate sector prices are increasing, and because of which, right, the number of people who are rich are also very much, the number of people who are middle class is also very high, the number of people who are poor is also very high, right? So the number of homes that will be required will also be a lot more as compared to now. As the data suggests, 144 million new homes will be required by 2070. Take a note of it. Then not just floods, students, here we talked about floods, but not just floods. Last 2 to 3 months back, there was a report and we discussed it. That report stated that because of rising temperature on daily basis, 2 to 3 hours will also be wasted, that won't be productive in India, as the temperature will be so high it will be not bearable to work in those conditions, and because of that the economic activity will also be impacted. Next, here you can see cities need more funds as flood losses rise, and India is currently spending 0.7% of the GDP on urban infrastructure and services, much less than any other country. Next is banking and finance. SEBI has introduced centralized compliance reporting platform for the brokers starting from 1st of August 2025. I repeat, SEBI, they have collaborated with National Stock Exchange of India, and they have launched Samuhik Prativedan Manch, that is Samuhik Prativedan Manch. This is a unified reporting platform that will simplify the compliance for the stockbrokers. This initiative is designed to make compliance process more streamlined, transparent and cost effective for the stockbrokers. Starting from 1st of August 2025, the mechanism will be introduced in a step-by-step manner. Currently, the registered broker or the brokers that are registered with multiple stock exchanges, they are required to submit the identical compliance report to each exchange individually. After this platform launch, the brokers will now be able to submit the compliance report through a single interface, and they don't have to submit their reports individually. Apart from this, this new system will be implemented in phases, with 40 compliance report included in the first rollout phase, right? And if we talk about SEBI, who is the current chairman of SEBI? He is Tuhin Kanta Pandey, right? Where is the headquarter of SEBI? It is in Mumbai, Maharashtra. Moving on, students, to Equitas Small Finance Bank. They have launched FCNR deposits and Explorer saving deposits. What is this FCNR? FCNR is your foreign currency non-resident deposit account. So Equitas Small Finance Bank, they have announced the launch of two financial products. First is your FCNR deposit, and second is your Explorer saving account, not deposit, Explorer saving account. If we talk about this FCNR deposit account, this is a type of a fixed deposit account where the NRIs, that is non-resident Indians, save their earnings in foreign currency in US dollar in India, and this bank offers rewarding interest rate, tax-free interest income on the earnings in India, and full repatriation of the principal and interest. Then if we talk about this Equitas Explorer saving account, this account is designed specifically for the NRIs and PIOs, that is persons of Indian origin, that are working in the foreign shipping companies, merchant navy and oil rigs. And this will be also available in two variants, that is for NREs and NRO, that is non-resident external and non-resident ordinary.
So all these things launched by Equitas Small Finance Bank. Moving on, PhonePe, they have partnered with SBI Card to launch two co-branded credit cards, right? Which are these credit card? It is your PhonePe SBI Card Purple and PhonePe SBI Card Select Black. This is an aim to broaden the formal credit access by offering rewards to the customers on their everyday transaction. And the two contactless credit card variants are issued on both RuPay and Visa network. Here, Visa cards can be tokenized on the PhonePe application, and the RuPay variants can be linked to the UPI for seamless transaction. Next, if we talk about PhonePe students, who is the Chief Executive Officer of PhonePe? Sameer Nigam. Where is the headquarter? Bengaluru, Karnataka, and it was established in 2015. Next is PSB, that is your public sector banks. GNPA, gross net performing asset. What is this? We will be discussing. First, see, public sector banks gross not net performing assets, they have dropped from 9.11% in FY21 to just 2.58% in FY25. Now, what are these non-performing assets? Say, for example, a bank gave a loan of 10 crore rupees or say 1 crore rupees to an individual. It was a home loan, but after a certain period of time, that individual is not paying back the EMI and he now cannot pay back the loan. Now, what the bank will do is, for them, this person becomes a non-performing asset, right? They can take their property back, then sell it, and then get the money back. But in certain cases, say for example, if this is not for a home loan, right, this is generally a personal loan that the person took, but now he is not able to pay back that loan. Now this 1 crore will become a non-performing asset, right? Because for them, this 1 crore that they gave has lost its value and this is not generating any income for the banks, right? So these are your NPAs. So the gross NPA of the public sector banks has steadily decreased over the past 5 years from 9.11% in FY21 to just 2.58% in FY25. This is a good news, right? And this decline is mainly due to the IBC, that is your Insolvency and Bankruptcy Code, that could remove the non-payers from the company's management and bar and willful defaulters from participating in the resolution process. Moving on. Also, apart from this, these PSBs, they have witnessed sharp decline in their GNPS, as you can see, because of this non-payers, and we have discussed this. Next, see, non-performing asset, loans on which borrowers have failed to repay the principal or interest for 90 days. Gross NPA, it refers to the total value of the loans that have turned on non-performing, and GNPA is reported as an absolute figure. And GNPA ratio, it is the ratio of the gross non-performing assets to their total advances in a particular year. Moving on. RBI's Financial Inclusion Index has risen by 4.3% to 6.267 in FY25 and shows growth across all segments. What does this mean is that RBI's FI index, first of all, that is your Financial Inclusion Index. This measures the depth and the reaches of financial inclusion across the country. It has risen by 4.3% in FY25, right? And here, this reflects the steady progress across all the sectors, their access, usage, and the quality of the financial services among them. If we see here, this index was first introduced by RBI in the month of August in 2021, right? And it is a comprehensive index that records details of banking, instruments, insurance, postal, and pension sector. This index will capture information on various aspects of financial inclusion, right, in a single value ranging from 0 to 100. Right, and here it has risen to 67. Correct. Then next thing, remember, we talk about RBI. Who is the governor? Sanjay Malhotra. So RBI's Financial Inclusion Index, that is your FI index, risen by 4.3%, and it shows growth in all the segments. Next is SEBI. They have renewed the recognition of MCX CCL as a clearing corporation, that is your Multi Commodity Exchange Clearing Corporation Limited, the wholly owned subsidiary of Multi Commodity Exchange of India, as a clearing corporation for a period of 3 years starting from 31st of July to 30th of July to 2028. This renewal is subject to compliance with SEBI's regulatory framework, including 6 management, risk management, capital adequacy, and corporate governance standards, right? And following this approval, the contracts will be available for trading throughout the calendar year now. Next, Credex and Canara Bank, they have partnered to enhance the MSME digital trade finance via DTX, right? I repeat,
Credex, that is India's leading integrated supply chain finance platform, they have signed a strategic partnership with Canara Bank to bridge the 30 lakh crore rupees credit gap in the MSME sector. Again, see students, we discussed in the starting of the video that MSME sector is very important for India because a lot of employment is generated here. It gives employment to a lot of people, right? So the government also wants to boost the MSMEs, right? As they not just employ or they not just generate job opportunities, but their products that they are making or the services that they are delivering, right, can also be exported in the international market, which will further enhance our dollars incoming, or it will further enhance our export. And as the exports will be increased, the fiscal deficit will be coming down, right? So mark this. Next is awards and recognition. World's top 10 favorite international airport list has been released, and Chhatrapati Shivaji International Airport of Mumbai, Maharashtra secured 9th position, whereas the Istanbul Airport has secured the first position again. I repeat, Travel Plus Leisure, a travel and lifestyle magazine, they have released this top 10 favorite international airports for 2025 list, and as per the report, Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport of Mumbai, Maharashtra record 9th, and they secured the 9th position in this index. If we further see about this index, first Istanbul Airport, second Singapore Changi Airport, third Hamad International Airport of Qatar, fourth Zayed International Airport, and fifth is your Dubai International Airport. Correct? Important. And here Istanbul Airport, they secured the first position for the second consecutive year. Next, science and tech. BITS Pilani based startup Apollon Dynamics, they have delivered the indigenous drones to the Indian Army, right? So we know that Government of India, they banned the import of drones. Only the drones for the research purposes, for R&D, can be imported, right? And so what this will do is, this will enhance the in-house manufacturing of the drones and in-house research and development of the drones in India, right? So Apollon Dynamics, that is a BITS Pilani based startup, they have now delivered drones to the Indian Army. These drones, or you can say unmanned aerial vehicles. Correct? Mark this, this is also important question. These drones, they can fly up to 300 km per hour. They can also evade the radar detection, and they have a payload capacity of 1 kilogram. Next is sports students. Japan Badminton Open 2025 was held, and Shi Yuki has won the men's single and NC Young has won the women single title. This was the 42nd edition of the Japan Open Badminton tournament. It was officially titled as the Daisuto Japan Open 2025, and it was held from 15th to 20th of July in 2025. And China's Shi Yuki has won the men's single title, and NC Young, she has won the women's single title. Correct? Take a note of this. And NC Young is from South Korea. Next, here you can see the winners. Moving on, Andre Russell has retired from all the forms of international cricket. Directly remember, West Indies all-rounder Andre Russell. Next, important days. National Broadcasting Day observed on 23rd of July. This day is observed basically to raise awareness about the establishment of the private radio station in the Bombay, that is Indian Broadcasting Company, right? That was established in 1927, IBC. Where was it? It was in Mumbai, Maharashtra. This day celebrates radio as the first major source of news and entertainment before television, and it was a revolution back then. This year, it was the 98th anniversary of the formation of IBC, correct? And All India Radio, right, that is now known as Akashvani, right, is India's national public radio broadcaster. If we talk about Prasar Bharati, who is the Chief Executive Officer of Prasar Bharati? Gaurav Dwivedi. And the headquarters is in New Delhi. Next is Tamil Nadu to establish India's first center of excellence for hornbill conservation at Annamalai. I repeat, Tamil Nadu, they will be establishing India's first center of excellence for hornbill conservation at Annamalai Tiger Reserve. Where is it? It is in the Coimbatore district of Tamil Nadu, and this is to protect hornbills. These birds that you can see in the picture, these are your hornbills. These are basically facing threats from deforestation, habitat fragmentation and climate change. For this fund, 1 crore rupees has been allocated, where they will be used to conserve these
hornbills. The 4 hornbill species will be targeted here: great hornbill, Malabar grey hornbill, Malabar pied hornbill, and Indian grey hornbill. Next is Uttarakhand. Uttarakhand state has launched India's first systematic plant conservation program. This will restore 14 critically endangered plant species to their original ecosystem in the Western Himalayas, and this initiative is implemented during the monsoon season to ensure optimal growth conditions. It is supported by Uttarakhand State Biodiversity Board and aligned with the International Union for the Conservation of Nature Red List. This Red List released by IUCN, and this list is basically talking about, this list contains all those species of flora and fauna that are threatened. Correct? And this marks India's first plant reintroduction effort. So Uttarakhand launched India's first systematic plant conservation program. Correct? And here 14 species has been chosen for the project. That includes your red crane orchid, Himalayan lily, white Himalayan lily, golden Himalayan spike, Doon cheesewood. Right? These are some of the species that has been selected here for the conservation. So students, these are your important current affairs. Now let's move to the revision part that will be better for your learning. नेक्स्ट है नेम द इनिशिएटिव, जिसको लॉन्च किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन मे, जिसका एम रहेगा टू क्रिएट अ यूनिफाइड डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम अक्रॉस इंडिया. तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है ध्रुवा, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस. ध्रुवा बेसिकली सिंप्लीफाई करेगा लोकेशन आइडेंटिफिकेशन को टू इम्प्रूव द गवर्नमेंट सर्विसेज, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड एक्यूरेसी इन सेक्टर्स जैसे ई कॉमर्स, बैंकिंग, अर्बन प्लानिंग एक्सेट्रा. एंड ये एड्रेस एज अ सर्विस को यहाँ पे प्रमोट करता हुआ दिखेगा एफिशिएंटली. नेक्स्ट, व्हाट नेम वाज ऑफिशियली गिवन टू द टाइगर कॉरिडोर एरिया, जो कनेक्ट कर रहा है कवाल टाइगर रिजर्व को तेलंगाना में विद तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र. तो क्या नाम दिया गया था उसको? वो है कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व. एंड करंटली अगर हम देखें 58 टाइगर रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में. एंड माधव नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, ये ही आपका 58 टाइगर रिजर्व है जो कि रिसेंटली डिक्लेयर किया गया था मार्च 2025 में. नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने लॉन्च किया बैटरी आधार इनिशिएटिव ड्यूरिंग द बैटरी समिट 2025 जो कि दिल्ली में हुई, जिसका एम रहेगा टू एनहेंस ट्रेसेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडियाज बैटरी इकोसिस्टम. तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बैटरी आधार इनिशिएटिव को लॉन्च किया? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड यहीं पे अगर हम देखें, ये जो बैटरी आधार टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? टाटा एलेक्सी लिमिटेड, इनके द्वारा करा गया था. राइट. एंड जो ये यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी होगी जो कि बैटरी आधार है, इसका 16 डिजिट का ये एक डिजिटल आइडेंटिटी रहेगी. जैसे आधार कार्ड हमारा, राइट, 12 डिजिट का आधार कार्ड होता है, यूनिक आइडेंटिटी होती है. सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे ये आपकी 16 डिजिट की आइडेंटिटी होगी. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया दैट बिकेम द 24th to achieve 100% railway electrification of their rail tracks as announced by Prime Minister नरेंद्र मोदी in May 2025. तो ये है गुजरात स्टेट. राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस. 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव की गई है इनके द्वारा. फिर आ जाते हैं, मेंशन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट वाज डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन इन मे बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज टू प्रोटेक्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड हंगूल डियर. तो हंगूल डियर को प्रिजर्व करने के लिए तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको डिक्लेयर किया गया है एज इको सेंसिटिव जोन. ये तराल सेंचुरी है कहाँ पर? ये है पहलगांव में. पहलगांव ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में. नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया तीसरा एडिशन ऑफ लेवेंडर फेस्टिवल. लेवेंडर फेस्टिवल, लेवेंडर बेसिकली फ्लावरिंग स्पीशीज होती है. राइट, काफ़ी अच्छे फ्लावर्स होते हैं. तो ये लेवेंडर फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है कहाँ पर? ये पूछा गया. तो जम्मू एंड कश्मीर में इसको ऑब्जर्व किया गया. एंड इससे टूरिज्म यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा. इससे लेवेंडर के जो फ्लावर्स हैं इसको इकट्ठा कर कर यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि ये एक एरोमेटिक क्रॉप है. तो इससे कई सारे लोकल स्टार्टअप्स यहाँ पर ग्रो हो सकते हैं. इस प्रोडक्ट को यूज़ करके वेरियस अदर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि मार्केट में वो सेल कर सकेंगे. नेक्स्ट, ओडिशा गवर्नमेंट, इन्होंने लॉन्च किया कौन सा इनिशिएटिव फॉर फॉस्टरिंग इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव अर्बन ग्रोथ, भुवनेश्वर ओडिशा में. तो नाम क्या रहेगा उस इनिशिएटिव का? वो है अंकुर. अंकुर क्या है आपका? अंकुर है आपका अटल नेटवर्क ऑफ नॉलेज, अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म. ये एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जो कि आपकी सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव अर्बन ग्रोथ को प्रमोट करेगा. कहाँ पर? भुवनेश्वर ओडिशा में.
नेक्स्ट आते हैं फिर उस इवेंट का नाम बताओ जो कि इनॉग्रेट किया गया डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा 3 जून को एट इंडिया हैबिटेट सेंटर इन दिल्ली, जिसमें इंक्लूडेड था लॉन्च ऑफ लैंडमार्क बुक्स ऑन साइकिलिंग। तो इवेंट का नाम है अर्बन अड्डा 2025 कॉन्क्लेव। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया गया है, यहाँ पे बात की गई है जेंडर एंड मोबिलिटी के ऊपर, क्लाइमेट रेजिलेंट सिटीज़ बनाने की बात की गई है, एंड हम कैसे वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, क्लीन एयर प्रमोट कर सकते हैं, वाटर को प्रॉपरली सस्टेनेबली एंड अच्छे तरीके से हम लोगों तक पहुंचा सके हैं, एंड इंक्लूसिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर यहाँ पे बात की गई, राइट। तो ये है वो इनिशिएटिव अर्बन अड्डा 2025 कॉन्क्लेव जो यहाँ पे लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को, पहली चीज। दूसरी है ग्रीन अडॉप्शन स्कीम, तो ये दोनों लॉन्च किए गए जिसका एम है टू एनहेंस ग्रीन कवर एंड प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द स्टेट। तो क्या नाम रहेगा उस स्टेट गवर्नमेंट का, वो है हिमाचल प्रदेश। इनके द्वारा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना एंड ग्रीन अडॉप्शन स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया। द एम यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि जो ग्रीन कवर है, हरियाली है, उसको बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की बात की गई, राइट। एंड जो बंजर जगह पैच ऑफ लैंड हो जाता है छोटा, वहाँ पर हम ग्रीनरी कर सकें, करेक्ट, जिससे एक अच्छा ब्यूटिफिकेशन भी होगा एज वेल एज एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं विच 2 वेटलैंड्स इन राजस्थान वर न्यूली डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स एज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव। तो वो 2 कौन से वेटलैंड हैं, वो हैं खिचियान एंड मैनार। एक चीज याद रखेंगे, मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, इसको बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, राइट। ये बर्ड में यहाँ पे काफी ज्यादा स्पीशीज हमें देखने को मिलती है। एंड जो खिचियान वेटलैंड है ये लोकेटेड है नॉर्दर्न थार डेजर्ट में, करेक्ट। इन दोनों राजस्थान में, राजस्थान में 4 रामसर साइट्स हैं। अब नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑब्जर्व स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 1 May to 15 May इन दिल्ली, एंड स्वच्छता पखवाड़ा इसको कंडक्ट किया गया अंडर विच मिशन, तो ये आपका स्वच्छ भारत मिशन के अंडर कंडक्ट कराया गया था स्वच्छता पखवाड़ा। एंड स्वच्छता पखवाड़ा को इनिशियली अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था, राइट, जहाँ पे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ये साथ आती हैं एंड 2 वीक डेडिकेट करती हैं ताकि इंटेंसिव मतलब जोरों शोरों से यहाँ पे क्लीनिनेस के ऊपर काम किया जा सके, सफाई के ऊपर काम किया जा सके। नेक्स्ट, किस स्टेट में इंडिया ने अचीव की 100% सक्सेस रेट इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट अंडर उल्लास नव भारत सशक्त कार्यक्रम इन जून 2025। तो किस स्टेट ने अचीव किया, ये है तमिलनाडु, राइट। नेक्स्ट, नेम द एप्लीकेशन एनहांस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन 4 June टू प्रोवाइड रियल टाइम वोटर टर्नआउट अपडेट्स। तो ये है इलेक्शन कमीशन नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये लॉन्च अलाइन करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कमिटमेंट ताकि टाइमली पब्लिक कम्युनिकेशन हो सके, जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी है। एंड इवन अगर आपको याद हो तो पहली स्टेट बन गई है बिहार अभी, जो बात कर रहे हैं कि हम जो इलेक्शंस हैं वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे, राइट। आप घर बैठे यहाँ पे ईजिली मोबाइल फ़ोन से वोटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, who launched the एक पेड़ माँ के नाम 2.0 इनिशिएटिव along with स्पेशल मॉड्यूल्स एंड ईगो क्लब्स फॉर मिशन लाइफ, जो कि है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसका वेब पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया। इनिशिएटिव क्या है, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 इनिशिएटिव, मतलब एक पेड़ हमेशा अपनी मदर के लिए यहाँ पे हमें लगाना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट और बेटर हो सके, करेक्ट, ग्रीनरी बढ़ सके। तो पूछा जा रहा है कि ये वेब पोर्टल, राइट, हु लॉन्च दिस इनिशिएटिव एक पेड़ माँ के नाम 2.0 इनिशिएटिव अलॉन्ग विद दिस मिशन लाइफ वेब पोर्टल, तो ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। नेक्स्ट, what is the revised minimum land required in hectares for setting up semiconductor manufacturing units in multi-product SEZs as per the Special Economic Zones Amendment Rules of 2025 notified by the Ministry of Commerce and Industry in June 2025। तो यह है 4 हेक्टेयर्स, ये है रिवाइज मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जून किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी पार्टनर किया सेतु आयोग के साथ, जो कि है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। यहाँ पे साइन किया गया 3 स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट्स विद टाटा ट्रस्ट, नेस्कॉम एंड वाधवानी फाउंडेशन, जिसका एम रहेगा टू एस्टेब्लिश द स्टेट एज अ हब फॉर डिजिटल टैलेंट एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे पार्टनर किया सेतु आयोग के साथ, तो ये है उत्तराखंड। ठीक, टेक अ नोट ऑफ इट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट,
किन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला कमर्शियली अप्रूव्ड यूटिलिटी स्केल 20 मेगावाट बाय 40 मेगावाट पर आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहां पर? साउथ दिल्ली में इन मई 2025। तो ये दिल्ली पावर मिनिस्टर आशीष सूद के द्वारा इनॉग्रेट किया गया एंड ये फैसिलिटी साउथ एशिया की लार्जेस्ट ग्रिड कनेक्टेड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो कि फर्स्ट यूटिलिटी स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रहेगा, जो कि इंडिया की जो कमर्शियल नीड है उसको पूरा करता हुआ देखेगा। नेक्स्ट, वेयर डेड तमिलनाडु गवर्नमेंट नोटिफाइड द क्रिएशन ऑफ ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, जो कवर करता है 524.78 हेक्टेयर्स ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि 5 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। राइट, आई करेक्ट माई सेल्फ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व कब करते हैं? यस, 5 जून को ऑब्जर्व करते हैं। राइट, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया क्रिएशन ऑफ द ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, जो कवर करता है इतने हेक्टेयर्स ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन जून। तो कहां पर तमिलनाडु में? तो ये रहेगा आपका तमिलनाडु में द धनुषकोडी। ठीक है। नेक्स्ट, इन जून गवर्नमेंट ऑफ असम एंड मेघालय ने अनाउंस किया एक जॉइंट इनिशिएटिव जहां पे 55 मेगावाट का हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश किया जाएगा। किस रिवर पे? कोलसी रिवर पे। एंड इससे दोनों स्टेट्स की जो नीड है, वाटर की नीड है एंड इलेक्ट्रिसिटी नीड है, वो पूरी होती हुई दिखेगी। करेक्ट। एंड इसमें यहीं पे अगर हम देखें तो असम को बेनिफिट भी देखने को मिलेगा कि ये जो एडिशनल इरिगेशन बेनिफिट है वो यहाँ पे असम को देखने को मिलेगा, बट दोनों को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड पानी भी मिलता हुआ हमें देखने को मिलेगा, जिससे दोनों स्टेट्स की नीड पूरी होती हुई दिखेंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन Director General of Railway Protection Force. Second question, Karnataka Bank has appointed whom as the interim Managing Director and Chief Executive Officer. Third question, tell me recently who has been or who has assumed the charge of the LIC's new CEO and Managing Director. Fourth question, tell me recently who became the only Indian on the Time 100 creators list. Name that content creator. And fifth question, students, tell me recently name that exercise that was held between India and Japan Coast Guard, that is Indian Coast Guard and Japan Coast Guard. It was held in Chennai. Name that exercise, right? So all these questions are very important, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 24 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स सभी के साथ। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखा करो, इससे आपकी लर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अगर हम बात करें, इंडिया ने अभी कंप्लीट करी स्क्रीनिंग ऑफ 6 करोड़ पीपल, टारगेट है 7 करोड़ का फॉर नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन। देन नागालैंड यूनिवर्सिटी में सेटअप किया जाएगा वन ऑफ द 4 इंक्यूबेशन सेंटर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। देन वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट डिस्कस करेंगे एंड इसके अलावा काफ़ी सारी न्यूज़ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 24 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स सभी के साथ। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखा करो, इससे आपकी लर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अगर हम बात करें, इंडिया ने अभी कंप्लीट करी स्क्रीनिंग ऑफ 6 करोड़ पीपल, टारगेट है 7 करोड़ का फॉर नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन। देन नागालैंड यूनिवर्सिटी में सेटअप किया जाएगा वन ऑफ द 4
इंक्यूबेशन सेंटर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। देन वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट डिस्कस करेंगे एंड इसके अलावा काफ़ी सारी न्यूज़ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। इंडिया ने कंप्लीट किया स्क्रीनिंग ऑफ 6 करोड़ पीपल अंडर नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन। मतलब देखो सबसे पहले ये सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन या फिर ये डिजीज़ क्या है, सिकल सेल डिजीज़, ये आपकी एक रेड ब्लड सेल डिजीज़ होती है, राइट। एंड इसमें आपका जो रेड ब्लड सेल का शेप होता है ना वो एबनॉर्मल होता है, करेक्ट। ये तो जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, सिकल सेल डिजीज ये आपकी एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 6 करोड़ पीपल को यहाँ पे अभी स्क्रीन किया, इनकी चेकिंग की फॉर सिकल सेल डिजीज एंड अंडर द नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन। टारगेट है 7 करोड़ स्क्रीनिंग करने का। आउट ऑफ दिस 6 करोड़ 2.15 लाख इंडिविजुअल्स को यहाँ डायग्नोज किया गया विद सिकल सेल डिजीज, जिसमें और इसके अलावा 16.7 लाख इंडिविजुअल्स को यहाँ पे एज अ कैरियर्स आइडेंटिफाई करा गया। स्टेट्स देखें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तराखंड, इन्होंने एक्सीड किया इन द स्क्रीनिंग टारगेट एंड 2.6 करोड़ हेल्थ कार्ड्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्क्रीन्ड इंडिविजुअल्स अक्रॉस द स्टेट्स। एंड सबसे ज्यादा जो हायर नंबर ऑफ डायग्नोज केसेस देखने को मिले हैं वो ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात से देखने को मिले हैं। एक और चीज, ये जो नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन है, इसको 1 जुलाई को लॉन्च किया गया था 2023 में एंड इनका टारगेट है कि सिकल सेल डिजीज को एलिमिनेट किया जा सके बाय 2047। फिर आ जाते हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी पे। इन्होंने होस्ट किया वन ऑफ द 4 इंक्यूबेशन सेंटर को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, राइट। यहाँ पे बेसिकली एम क्या रहेगा इस इंक्यूबेशन सेंटर का, यहाँ पे फोकस किया जाएगा कि स्टार्टअप को हम फॉस्टर कर सकें, स्टार्टअप ग्रोथ देखने को मिलेगी, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा एंड 50 यहाँ पे स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया जाएगा जिनको 5 लाख रुपए का ग्रांट भी देने की बात की जाएगी। अब देखो इससे होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा जागरूकता बढ़ेगी स्टार्टअप सिस्टम की। तो इससे होगा क्या, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, लोग जो यंग इंडिविजुअल्स हैं वो स्टार्टअप की तरफ भागेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होके नए कंपनीज, नए बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट होते हुए दिखेंगे, राइट। तो नागालैंड यूनिवर्सिटी में वन ऑफ द 4 इंक्यूबेशन सेंटर्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में सेटअप किए जाएंगे वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। देन आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट रिलीज की गई जहां पे इन्होंने बताया कि 2030 तक इंडियन सिटीज 70% जॉब्स क्रिएट करेंगी। बहुत अच्छी बात है, राइट, कि इंडिया के पास पोटेंशियल है। इंडिया की जो सिटीज़ हैं वहाँ पे ह्यूज पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है, करेक्ट। तो 70% नई जॉब्स यहाँ पर हमें सिटीज़ से देखने को मिलेंगी 2030 तक। इवन आप देख रहे होंगे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को, प्रोजेक्ट्स को लाया जा रहा है। तो अब इन प्रोजेक्ट्स को बना देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर देंगे, तो उन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के बाद उस पूरी फैक्ट्री को रन भी तो करना है, उसके लिए हमें स्किल लोग चाहिएंगे। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी स्किलिंग मिशंस भी लॉन्च किए जा रहे हैं इसीलिए, राइट। इवन एमएसएमईज को बूस्ट किया जा रहा है ताकि जॉब्स क्रिएट हो सकें। ये तो हो गया एक पहलू। दूसरा पहलू इस रिपोर्ट का क्या कहता है कि नेचुरल डिजास्टर स्पेसिफिकली फ्लड की वजह से इंडिया $5 बिलियन लूज कर सकता है 2030 तक। तो ये भी एक डाटा याद रखेंगे कि 4 से 5 बिलियन डॉलर तक हम लूज करेंगे, क्योंकि इंडिया में जिस अमाउंट का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो अमाउंट हमें स्पेंड करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ताकि अगर फ्लडिंग होती है हम उसको रोक सके, उससे माल हानि का नुकसान ना हो सके। इवन एक और डाटा बोल रहा है कि 4 से 5 बिलियन डॉलर तो 2030 तक, जो कि बढ़ के 14 से 30 बिलियन डॉलर हो जाएगा 2070 तक, अगर हमने प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं किया। एक और डाटा कि जो इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन है, जो कि सिटीज में लोग हैं, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी 2050 तक टू 951 मिलियन, राइट। एंड जिसमें से हमें 144 मिलियन नए होम्स की जरूरत पड़ेगी 2070 तक। देखो इसीलिए इंडिया में जो रियल एस्टेट है वो इतने ज्यादा ग्रोथ पे है स्टूडेंट्स, राइट। जो शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है अब रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में, मेजर सिटीज में बूस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो जॉब एम्प्लॉयमेंट्स हैं वहीं पर हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं एंड लोग अब सिटीज़ की तरफ रुख कर रहे हैं, वहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं, जिससे डिमांड बढ़ रही है। सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली ये आपका एक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल होता है कि अगर डिमांड हाई है और सप्लाई कम है तो उस कॉमोडिटी का, उस पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा। चलिए फिर एक और चीज यहां पे हम देखते हैं, इंडिया करंटली 0.7% ऑफ द जीडीपी स्पेंड कर रहा है ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, मच लेस देन एनी अदर कंट्री।
मूविंग ऑन टू बैंकिंग एंड फाइनेंस, सेबी ने इंट्रोड्यूस किया सेंट्रलाइज कंप्लायंस रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को फॉर ब्रोकर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त 2025। इससे क्या होगा, पहले जो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स होते थे ना, वो मल्टीपल ब्रोकिंग कंपनी के साथ रजिस्टर्ड होते थे एंड उनको अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट को लिस्ट करना पड़ता था, सबमिट करना पड़ता था हर एक्सचेंज को इंडिविजुअली। अब क्या हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म से, अब उन्हें एक ही रिपोर्ट को सिंगल इंटरफेस पे रजिस्टर करना पड़ेगा, जिससे बाकी सारी कंपनीज, बाकी सारे एक्सचेंजेस उससे उस रिपोर्ट को ले लेंगे। ये जो नया सिस्टम है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा फेजेस में एंड 40 कंप्लायंस रिपोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है पहले रोल आउट में, जो कि 1 अगस्त 2025 से लॉन्च होता हुआ दिखेगा। इससे बताया जा रहा है कि 990 स्टॉक ब्रोकर्स विद मेंबरशिप्स अक्रॉस मल्टीपल एक्सचेंजेस, उनको बेनिफिट देखने को मिलेगा इमीडिएटली फ्रॉम दिस इनिशिएटिव, राइट। एंड अगर बात करें सेबी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो सेबी की चेयरमैन कौन है, तुहिन कांता पांडे। इनका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने लॉन्च किया FCNR डिपॉजिट एंड एक्सप्लोरर सेविंग अकाउंट को। तो दो चीज लॉन्च की गई हैं, FCNR डिपॉजिट एंड एक्सप्लोरर सेविंग अकाउंट इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। अगर हम बात करें ये FCNR डिपॉजिट अकाउंट, ये एक तरीके का फिक्स डिपॉजिट है जिसमें NRIs अपनी अर्निंग्स को, फॉरेन करेंसीज को US डॉलर में इंडिया में सेव कर सकते हैं एंड जो इस फिक्स डिपॉजिट से रेट मिले, इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वो टैक्स फ्री यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम उनकी देखने को मिलेगी। फिर इक्विटास और जो दूसरा इक्विटास एक्सप्लोरर सेविंग अकाउंट यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है आपके NRE एंड NROs के लिए, जो कि है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल एंड नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। एंड ये जो अकाउंट है NRIs के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है, जो कि फॉरेन शिपिंग कंपनीज में, मर्चेंट नेवीज में या ऑयल रिग्स में वर्क करते हैं। नेक्स्ट, फोन पे इन्होंने पार्टनर किया SBI कार्ड के साथ, ताकि दो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। आप ये देख सकते हैं, पहला है फोन पे SBI कार्ड पर्पल एंड दूसरा है फोन पे SBI कार्ड सेलेक्ट ब्लैक। रुपे एंड वीजा नेटवर्क पे इसको लॉन्च किया गया है एंड इनकी एप्लीकेशन पे ये टोकनाइज हो जाएंगे। मूविंग ऑन, पब्लिक सेक्टर बैंक का जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो ड्रॉप कर गया फ्रॉम 9.11% इन FY21 टू जस्ट 2.58% इन FY25। ये एक अच्छी न्यूज़ है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है कि किसी ने बैंक से लोन लिया एंड फिर वो लोन को पे बैक नहीं कर पाया 90 दिनों तक, तब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंसिडर किया जाता है, राइट। ये अच्छी चीज़ नहीं होती हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एंड NPS बढ़ना एक बुरी चीज़ होती है, राइट। तो लेकिन हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से जो हमारे NPS है बैंक के, वो घटते हुए दिखे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब लोग टाइमली जो लोन ले रहे हैं बैंक से, उनको वापस बैंक को सबमिट कर रहे हैं, वापस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो ग्रॉस NPA है वो गिर गया फ्रॉम 9.11% टू 2.58% इन FY25। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है RBI का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, जिसको फाई इंडेक्स बोलते हैं। ये 0 से 100 तक होता है एंड इसमें अभी हमें राइज देखने को मिला ऑफ 4.3% टू 67 इन FY25। ये दिखाता है कि इंडिया में जो ग्रोथ देखने को मिल रही है हर सेगमेंट में, एंड हम देख रहे हैं आज के टाइम पे फाइनेंस भी ग्रो होता हुआ दिख रहा है, राइट। अभी रेपो रेट भी कम हुआ था, जिससे लोगों तक जो पैसा है वो इजीली अवेलेबल होगा, लोन सस्ते होते हुए दिखेंगे, राइट। तो मल्टीपल सेगमेंट्स में यहाँ पर हमें जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है, राइट। एंड यहाँ पर एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी के ऊपर यहाँ पे एक्सेस किया जाता है। एक्सेस होता है कि कितना इजीली फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल है, यूसेज होता है कि कितना फ्रीक्वेंटली यहाँ पर लोग उन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, एंड क्वालिटी की जो सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी क्या है, किस तरीके से वो क्वालिटी वाइज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, राइट। तो RBI का ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, जिसको फाई इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, वो 67 पर है अब 4.3% इंक्रीज के बाद, जो कि ग्रोथ शो कर रहा है अक्रॉस ऑल द सेगमेंट ऑफ एक्सेस, ऑफ इक्विटी, ऑफ एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, सेबी ने रिन्यू किया रिकॉग्निशन ऑफ मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एज अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, राइट। ये 3 साल के लिए यहाँ पे है, 31 जुलाई से लेके 2025 से लेके 30 जुलाई 2028 तक। एंड ये जो रिन्यूएबल है, इट इज सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद सेबीज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जहां पे रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल एडिक्वेसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम किया जाएगा। एंड इससे होगा क्या, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विल बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग थ्रू आउट द कैलेंडर ईयर, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रेडेक्स एंड कैनरा बैंक, इन्होंने पार्टनर किया टू एनहेंस द MSME डिजिटल ट्रेड फाइनेंस वाया
DTX। इससे होगा क्या, जो क्रेडिट गैप हमें देखने को मिलता है MSME सेक्टर में, देखो फिर आ गया, MSME सेक्टर को ग्रो करने के लिए इंडिया बहुत पुश कर रहा है स्टूडेंट्स। ये मैं बार बार आपको इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि MSME सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की ग्रोथ के लिए, राइट। एंड इसी को ग्रो करने के लिए आप देखेंगे डेली बेसिस पे मैं आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं कि वहां तक फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए कभी किसी कंपनी ने पार्टनर किया है, कभी किसी कंपनी ने पार्टनर किया है। अब यहां पे आप देखेंगे कि 30 लाख करोड़ का जो क्रेडिट गैप है MSME सेक्टर में, वहां तक फंडिंग पहुंचाने के लिए, वहां तक कैश पहुंचाने के लिए, वहां तक ऑपरेटिंग कैपिटल जो रिक्वायर्ड होता है इनको, वो पहुंचाने के लिए ये पार्टनरशिप हमने देखी, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये क्या करेगा, ये जो फंडिंग गैप है इसे ऑफर किया जाएगा इंस्टेंट वर्किंग कैपिटल टू द सप्लायर्स, जिससे जो कैश मैनेजमेंट है, जो कैश फ्लो है, वो एफिशिएंटली यहां पे मैनेज किया जा सके इन MSMEs के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। वर्ल्ड के टॉप 10 फेवरेट एयरपोर्ट्स की हम बात करेंगे, जिसमें छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इंडिया का एयरपोर्ट है वो 9th पोजीशन पे आता है इस बार, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैवल प्लस लेजर, ये एक ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल मैगजीन है, इनके द्वारा ये टॉप 10 फेवरेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2025 की लिस्ट रिलीज की गई, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, ये 9th पोजीशन पर आ जाता है। फर्स्ट पे कौन रहा, इस्तांबुल एयरपोर्ट, राइट, ये टर्की का है। एंड सेकंड टाइम फॉर द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर ये फर्स्ट पोजीशन पे हमें देखने को मिला। पहला इस्तांबुल एयरपोर्ट, सेकंड सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट, थर्ड हैमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फोर्थ जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड फिफ्थ पर आ जाता है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर साइंस एंड टेक पर आते हैं स्टूडेंट्स। बिट्स पिलानी बेस्ड स्टार्टअप अपोलियन डायनामिक्स, इन्होंने डिलीवर किया इंडिजीनियस ड्रोन्स टू द इंडियन आर्मी। देखो अगर आपको याद हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगा दिया था कि हम ड्रोन्स का इंपोर्ट नहीं करेंगे, राइट। सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए, R&D के लिए यहाँ पे ड्रोन्स को इंपोर्ट किया जा सकता है। इससे हुआ क्या, इंडिया में जब अगर ड्रोन्स बनाने पड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ बनाएंगे, इन हाउस बनाए जाएंगे, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इंडिया की ग्रोथ बढ़ेगी, राइट। एंड इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा, इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी। तो यहीं पर एक बिट्स पिलानी का इन हाउस स्टार्टअप है अपोलियन डायनामिक्स, एंड इनके द्वारा यहाँ पर ये अब ड्रोन्स डिलीवर किए जाएंगे, UAVs अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिनको ड्रोन्स ही कह देते हैं, ये डिलीवर किए जाएंगे टू द इंडियन आर्मी। 300 किलोमीटर पर आवर की इनकी स्पीड रहेगी एंड 1 किलोग्राम तक का ये पेलोड कैरी कर सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। जापान बैडमिंटन ओपन हमने देखा, एंड शी युकी ये चाइना के हैं एंड इन्होंने मैन सिंगल टाइटल को जीत लिया है। एंड एनसी यंग ये साउथ कोरिया की हैं, इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल को जीत लिया है। सो टेक अ नोट ऑफ दिस स्टूडेंट्स। 15 से लेके 20 जुलाई तक ये हमें इवेंट देखने को मिला था, टोक्यो जापान में ये इवेंट हुआ था, एंड मैन सिंगल टाइटल एंड वीमेन सिंगल टाइटल आप देख सकते हैं। मूविंग ऑन, एंड्रे रसल ये आपके वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं एंड इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ये IBC इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बॉम्बे जो कि अब मुंबई महाराष्ट्र है, वो इस्टेब्लिश की गई थी 1927 में, इसको ऑनर करने के लिए। एंड उस टाइम पर स्टूडेंट्स रेडियो एक ऐसा सोर्स था जिसने रेवोल्यूशन ला दिया था, जिससे आप इवन इन द रिमोट एरियाज में आप इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं, न्यूज को भेज सकते हैं, राइट। ये एक गेम चेंजर था, राइट। एंड ये डिजिटल एरिया जो डिजिटल एरा हम देखते हैं, जो न्यूज इंफॉर्मेशन इतनी रेडिली अवेलेबल है, तो उस टाइम का ये गेम चेंजर था। जैसे AI आज तबाही मचा रहा है, तो ऐसे ही समझिए उस टाइम पे रेडियो ने तबाही मचाई थी, राइट। एंड इस साल हमने 98th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है IBC की, करेक्ट। फिर इसको लेटर ऑन रीनेम कर दिया टू ऑल इंडिया रेडियो, प्रसार भारती जिसको कहते हैं आकाशवाणी, राइट। एंड प्रसार भारती के CEO हैं गौरव द्विवेदी, हेडक्वार्टर जिसका न्यू दिल्ली में है। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर आते हैं तमिलनाडु। इन्होंने स्टैब्लिश किया इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन एंड अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, राइट। तो तमिलनाडु के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। जो ये COE है आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किस लिए, ये आप बर्ड्स देख रहे हैं पिक्चर में, ये है हॉर्नबिल बर्ड्स, तो इनके कंजर्वेशन के लिए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में, जो कि कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ तमिलनाडु, ये लॉन्च किया गया। इसके लिए 1 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेट किए गए कि इस एंडेंजर्ड स्पीशीज को हम सेव कर सकें। एंड 4 हॉर्नबिल स्पीशीज को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम किया जाएगा। ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल एंड इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर उत्तराखंड स्टेट ने लॉन्च किया इंडिया का पहला सिस्टमैटिक
प्लांट कंजर्वेशन प्रोग्राम। यहाँ पे 14 क्रिटिकल एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाएगा, एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाया जाएगा उनके लिए, राइट। एंड इस इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट किया जाएगा ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन टू एंश्योर ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, क्योंकि मॉनसून होगा, बारिश अच्छी होगी, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपका मॉइस्चर है, वो अच्छे से, पानी अच्छे से मिलेगा एंड वहाँ पे ग्रोथ और बेटर होती हुई दिखेगी। एंड याद रखेंगे इसको सपोर्ट किया जा रहा है IUCN की रेड लिस्ट के द्वारा, राइट। एंड IUCN बेसिकली क्या होता है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, एंड इनके द्वारा एक रेड लिस्ट रिलीज की जाती है। रेड लिस्ट वो लिस्ट होती है जहाँ पे फ्लोरा एंड फौना की स्पीशीज को लिस्ट किया जाता है जो कि एंडेंजर्ड होती हैं, राइट। एंड इंडिया की ये पहला प्लांट री इंट्रोडक्शन एफर्ट है जहाँ पे जो प्लांट्स की स्पीशीज इन रेड लिस्ट में है उनको यहाँ पे कंजर्व करने का काम किया जाएगा, जैसे रेड क्रेन ऑर्चिड, व्हाइट हिमालयन लिली, गोल्डन हिमालयन स्पाइक, राइट। इनको यहाँ प्रोटेक्ट करने का काम किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग और स्ट्रॉन्ग करेगी। नेक्स्ट है नेम द इनिशिएटिव, जिसको लॉन्च किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन मई, जिसका एम रहेगा टू क्रिएट अ यूनिफाइड डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम अक्रॉस इंडिया। तो क्या नाम रहेगा उसका, वो है ध्रुवा, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ध्रुवा बेसिकली सिंप्लीफाई करेगा लोकेशन आइडेंटिफिकेशन को टू इम्प्रूव द गवर्नमेंट सर्विसेज, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड एक्यूरेसी इन सेक्टर्स जैसे ई-कॉमर्स, बैंकिंग, अर्बन प्लानिंग एक्सेट्रा। एंड ये एड्रेस एज अ सर्विस को यहाँ पे प्रमोट करता हुआ दिखेगा एफिशिएंटली। नेक्स्ट, व्हाट नेम वाज ऑफिशियली गिवन टू द टाइगर कॉरिडोर एरिया, जो कनेक्ट कर रहा है कवाल टाइगर रिजर्व को तेलंगाना में विद तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र। तो क्या नाम दिया गया था उसको, वो है कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व। एंड करंटली अगर हम देखें 58 टाइगर रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में। एंड माधव नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, ये ही आपका 58 टाइगर रिजर्व है जो कि रिसेंटली डिक्लेयर किया गया था मार्च 2025 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने लॉन्च किया बैटरी आधार इनिशिएटिव ड्यूरिंग द बैटरी समिट 2025 जो कि दिल्ली में हुई, जिसका एम रहेगा टू एनहेंस ट्रेसेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडियाज बैटरी इकोसिस्टम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बैटरी आधार इनिशिएटिव को लॉन्च किया, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड यहीं पे अगर हम देखें, ये जो बैटरी आधार टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था, टाटा एलेक्सी लिमिटेड, इनके द्वारा करा गया था, राइट। एंड जो ये यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी होगी जो कि बैटरी आधार है, इसका 16 डिजिट का ये एक डिजिटल आइडेंटिटी रहेगी। जैसे आधार कार्ड हमारा, राइट, 12 डिजिट का आधार कार्ड होता है, यूनिक आइडेंटिटी होती है। सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे ये आपकी 16 डिजिट की आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया दैट बिकेम द 24th टू अचीव 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ देयर रेल ट्रैक्स एज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मई 2025। तो ये है गुजरात स्टेट, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव की गई है इनके द्वारा। फिर आ जाते हैं, मेंशन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट वाज डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन इन मई बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज टू प्रोटेक्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड हंगूल डियर। तो हंगूल डियर को प्रिजर्व करने के लिए तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको डिक्लेयर किया गया है एज इको सेंसिटिव जोन। ये तराल सेंचुरी है कहाँ पर, ये है पहलगांव में। पहलगांव ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया तीसरा एडिशन ऑफ लेवेंडर फेस्टिवल। लेवेंडर फेस्टिवल, लेवेंडर बेसिकली फ्लावरिंग स्पीशीज होती है, राइट, काफ़ी अच्छे फ्लावर्स होते हैं। तो ये लेवेंडर फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है कहाँ पर, ये पूछा गया, तो जम्मू एंड कश्मीर में इसको ऑब्जर्व किया गया। एंड इससे टूरिज्म यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा। इससे लेवेंडर के जो फ्लावर्स हैं इसको इकट्ठा कर कर यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि ये एक अरोमेटिक क्रॉप है। तो इससे कई सारे लोकल स्टार्टअप्स यहाँ पर ग्रो हो सकते हैं, इस प्रोडक्ट को यूज़ करके वेरियस अदर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि मार्केट में वो सेल कर सकेंगे। नेक्स्ट, ओडिशा गवर्नमेंट, इन्होंने लॉन्च किया कौन सा इनिशिएटिव फॉर फॉस्टरिंग इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव अर्बन ग्रोथ, भुवनेश्वर ओडिशा में। तो नाम क्या रहेगा उस इनिशिएटिव का, वो है अंकुर। अंकुर क्या है आपका, अंकुर है आपका अटल नेटवर्क ऑफ नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। ये एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जो कि आपकी सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव अर्बन ग्रोथ को प्रमोट करेगा। कहाँ पर, भुवनेश्वर ओडिशा में। नेक्स्ट आते हैं फिर, उस इवेंट का नाम बताओ जो कि इनॉग्रेट किया गया डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा 3 जून को एट इंडिया हैबिटेट सेंटर इन दिल्ली, जिसमें इंक्लूडेड था लॉन्च ऑफ लैंडमार्क बुक्स ऑन साइकिलिंग।
तो इवेंट का नाम है अर्बन अड्डा 2025 कॉन्क्लेव। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया गया है, यहाँ पे बात की गई है जेंडर एंड मोबिलिटी के ऊपर, क्लाइमेट रेजिलेंट सिटीज़ बनाने की बात की गई है, एंड हम कैसे वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, क्लीन एयर प्रमोट कर सकते हैं, वाटर को प्रॉपरली सस्टेनेबली एंड अच्छे तरीके से हम लोगों तक पहुंचा सके हैं, एंड इंक्लूसिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर यहाँ पे बात की गई, राइट। तो ये है वो इनिशिएटिव अर्बन अड्डा 2025 कॉन्क्लेव जो यहाँ पे लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को, पहली चीज। दूसरी है ग्रीन अडॉप्शन स्कीम, तो ये दोनों लॉन्च किए गए जिसका एम है टू एनहेंस ग्रीन कवर एंड प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द स्टेट। तो क्या नाम रहेगा उस स्टेट गवर्नमेंट का, वो है हिमाचल प्रदेश। इनके द्वारा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना एंड ग्रीन अडॉप्शन स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया। द एम यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि जो ग्रीन कवर है, हरियाली है, उसको बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की बात की गई, राइट। एंड जो बंजर जगह पैच ऑफ लैंड हो जाता है छोटा, वहाँ पर हम ग्रीनरी कर सकें, करेक्ट, जिससे एक अच्छा ब्यूटिफिकेशन भी होगा एज वेल एज एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं विच टू वेटलैंड्स इन राजस्थान वर न्यूली डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स एज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव। तो वो दो कौन से वेटलैंड हैं, वो हैं खिचियान एंड मैनार। एक चीज़ याद रखेंगे, मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, इसको बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, राइट। ये बर्ड में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज हमें देखने को मिलती है। एंड जो खिचियान वेटलैंड है ये लोकेटेड है नॉर्दर्न थार डेजर्ट में, करेक्ट। इन दोनों राजस्थान में, राजस्थान में 4 रामसर साइट्स हैं। अब नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑब्जर्व स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 1st of May to 15th of May इन दिल्ली। एंड स्वच्छता पखवाड़ा इसको कंडक्ट किया गया अंडर विच मिशन, तो ये आपका स्वच्छ भारत मिशन के अंडर कंडक्ट कराया गया था स्वच्छता पखवाड़ा। एंड स्वच्छता पखवाड़ा को इनिशियली अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था, राइट, जहाँ पे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ये साथ आती हैं एंड 2 वीक डेडिकेट करती हैं ताकि इंटेंसिव मतलब जोरों शोरों से यहाँ पे क्लीनिनेस के ऊपर काम किया जा सके, सफाई के ऊपर काम किया जा सके। नेक्स्ट, किस स्टेट में इंडिया ने अचीव की 100% सक्सेस रेट इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट अंडर उल्लास नव भारत सशक्त कार्यक्रम इन जून 2025। तो किस स्टेट ने अचीव किया, ये है तमिलनाडु, राइट। नेक्स्ट, नेम द एप्लीकेशन एनहांस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन 4th of June टू प्रोवाइड रियल टाइम वोटर टर्नआउट अपडेट्स। तो यह है इलेक्शन कमीशन नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये लॉन्च अलाइन करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कमिटमेंट ताकि टाइमली पब्लिक कम्युनिकेशन हो सके, जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी है। एंड इवन अगर आपको याद हो तो पहली स्टेट बन गई है बिहार अभी, जो बात कर रहे हैं कि हम जो इलेक्शंस हैं वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे, राइट। आप घर बैठे यहाँ पे ईजिली मोबाइल फ़ोन से वोटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, हु लॉन्च द एक पेड़ माँ के नाम 2.0 इनिशिएटिव अलॉन्ग विद स्पेशल मॉड्यूल्स एंड ईको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ, जो कि है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसका वेब पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया। इनिशिएटिव क्या है, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 इनिशिएटिव, मतलब एक पेड़ हमेशा अपनी मदर के लिए यहाँ पे हमें लगाना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट और बेटर हो सके, करेक्ट, ग्रीनरी बढ़ सके। तो पूछा जा रहा है कि ये वेब पोर्टल, राइट, हु लॉन्च दिस इनिशिएटिव एक पेड़ माँ के नाम 2.0 इनिशिएटिव अलॉन्ग विद दिस मिशन लाइफ वेब पोर्टल। तो ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। नेक्स्ट, what is the revised minimum land required in hectares for setting up semiconductor manufacturing units in multi-product SEZs as per the Special Economic Zones Amendment Rules of 2025 notified by the Ministry of Commerce and Industry in June 2025। तो यह है 4 हेक्टेयर्स, ये है रिवाइज्ड मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जून किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी पार्टनर किया सेतु आयोग के साथ, जो कि है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। यहाँ पे साइन किया गया 3 स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट्स विद टाटा ट्रस्ट, नेस्कॉम एंड वाधवानी फाउंडेशन, जिसका एम रहेगा टू इस्टेब्लिश द स्टेट एज अ हब फॉर डिजिटल टैलेंट एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे पार्टनर किया सेतु आयोग के साथ, तो ये है उत्तराखंड, ठीक, टेक अ नोट ऑफ इट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, किन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला कमर्शियली अप्रूव्ड यूटिलिटी स्केल 20 मेगावाट बाय 40 मेगावाट पर आवर
बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ पर? साउथ दिल्ली में इन मई 2025। तो ये दिल्ली पावर मिनिस्टर आशीष सूद के द्वारा इनॉग्रेट किया गया एंड ये फैसिलिटी साउथ एशिया की लार्जेस्ट ग्रिड कनेक्टेड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो कि फर्स्ट यूटिलिटी स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रहेगा, जो कि इंडिया की जो कमर्शियल नीड है उसको पूरा करता हुआ देखेगा। नेक्स्ट, वेयर डेट तमिलनाडु गवर्नमेंट नोटिफाइड द क्रिएशन ऑफ ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, जो कवर करता है 524.78 हेक्टेयर्स ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि 5 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। राइट, आई करेक्ट माई सेल्फ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व कब करते हैं? यस, 5 जून को ऑब्जर्व करते हैं। राइट, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया क्रिएशन ऑफ द ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, जो कवर करता है इतने हेक्टेयर्स ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन जून। तो कहाँ पर तमिलनाडु में? तो ये रहेगा आपका तमिलनाडु में द धनुषकोडी। ठीक है। नेक्स्ट, इन जून गवर्नमेंट ऑफ असम एंड मेघालय ने अनाउंस किया एक जॉइंट इनिशिएटिव जहां पे 55 मेगावाट का हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश किया जाएगा। किस रिवर पे? कोलसी रिवर पे। एंड इससे दोनों स्टेट्स की जो नीड है, वाटर की नीड है एंड इलेक्ट्रिसिटी नीड है, वो पूरी होती हुई दिखेगी। करेक्ट। एंड इसमें यहीं पे अगर हम देखें तो असम को बेनिफिट भी देखने को मिलेगा कि ये जो एडिशनल इरिगेशन बेनिफिट है वो यहाँ पे असम को देखने को मिलेगा, बट दोनों को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड पानी भी मिलता हुआ हमें देखने को मिलेगा, जिससे दोनों स्टेट्स की नीड पूरी होती हुई दिखेंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, टेल मी हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। सेकेंड क्वेश्चन, Karnataka Bank has appointed whom as the interim managing director and chief executive officer. Third question, tell me recently who has been or who has assumed the charge of the LIC's new CEO and managing director. Fourth question, tell me recently who became the only Indian on the Time 100 creators list. Name that content creator. And fifth question, students, tell me recently, name that exercise that was held between India and Japan Coast Guard, that is Indian Coast Guard and Japan Coast Guard. It was held in Chennai. Name that exercise, right? So all these questions are very important, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.